Hello students, welcome back for the online classes of literature. Here I am once again for the uh, explanation of a new poem, The Wind. Today in this video I will explain you the summary and the line wise explanation of poem, and also I will tell you what does this poem actually teaches us and what is the exact message the poet wants to send us. Okay, so let us consider first about the summary of this poem. After that we will go through the detailed explanation of this poem. Now as we know that wind is a natural phenomena, so in this poem the poet talks to the wind. The poet talks to the wind that the power of wind has been described, and he says that wind is destructive. यहाँ पे जो पोएट है वो विंड से बातें करता है और वो ये और बताना चाहता है वो कि ये जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर की है. ठीक है. ऑल्सो ही हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड to the adversities of life and says that the weak people breaks down but stronger people emerge out of adversities stronger. Now listen here, the poet wants to tell us that, and also he compares wind to the adversities of life. Adversities of life means द प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन आवर लाइफ. हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस आउट होते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनसे विंड को लिंक किया गया है इस पोएम में. और पोएट हमें ये बताना चाहता है कि जिस तरीके से विंड जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं, जैसे कमज़ोर पौधे, कमज़ोर घर, कमज़ोर छत, कमज़ोर लोग, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक उसी तरीके से जो लोग अपने लाइफ में वीक होते हैं. वीक मीन्स इफ दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर सोल्यूशन टू देयर डिफिकल्टीज एंड इफ दे डू नॉट फेस देयर प्रॉब्लम्स, दे बिकम लूजर. ओके, सो ही सेज दैट द पोएम ऑल्सो गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज that we should be mentally and physically tough and strong in order to survive the hardship of life. We should be mentally and physically very properly, we can say properly mentally and physically strong to come up with the hardship of life. हमें अपने आपको मेंटली और फिजिकली तैयार रखना होगा, स्ट्रांग रखना होगा, जिससे कि हम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को अच्छे तरीके से कोप अप कर सकें. ठीक है. ऑल्सो ही कंपेयर्स, वंस अगेन ही सेज दैट इफ अ पर्सन इज वीक इन हिज मेंटालिटी, ही कैन नॉट फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स. ओके, सो दिस वॉज द एग्जैक्टली theme and the message of this poem which the poet Subramanya Bharati tried to give us. So now we will come to the poem with the line wise explanation and also the detailed explanation of this poem. So let's start. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Now, in the first two stanzas, the poet is talking to the wind. The poet is talking to the wind. He says that wind comes softly. हवा से बात कर रहा है और हवा से कहता है कि softly आओ.
As we know, there are two types of air. First one is wind, the soft air, the soft blowing air is called wind, and the second one is the tough and speedy air, जो तेजी से हवा चलती है जिसको हम स्टॉर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि विंड से कि हल्के से बहो, ठीक है, हल्के से आओ, ताकि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. तो विंडोज़ में जो शटर्स होते हैं, जो खिड़कियां हैं, उसको आप क्या करें, तोड़ो मत. डोंट स्कैटर द पेपर्स, डो नॉट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स कमरे में हैं उसको इधर उधर फैलाओ मत, ठीक है. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डो नॉट थ्रो डाउन द बुक्स, जो शेल्फ में जो किताब के लिए एक अलमारी होती है, जो किताबें रखी हुई हैं, उन किताबों को मत गिराओ. देयर लुक वॉट यू डिड, अब वो कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. ठीक है, वो कहता है, हवा से पोएट कहता है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पेज के पन्नों को फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश लेकर के आए हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत ही चालाकी से कमज़ोरों का मजाक बनाते हो. ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि विंड का जो कनेक्शन है वो एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ से किया गया है. ठीक है, तो मतलब ये है कि जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लाइफ की, वो क्या करती हैं, हमें पूरी तरीके से झकझोर देती हैं. ठीक है, हमें पूरी तरीके से तोड़ देती हैं, हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, हम किसी लायक नहीं रह जाते. लेकिन कब, जब हम उन डिफ़िकल्टीज़ को मौका देते हैं तब. अगर हमारे पास उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर अल्टीमेटली रिज़ल्ट यही होता है कि हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं. वो जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमारी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं, रूइन कर देती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पोएट यही कहना चाहता है कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, रेन मतलब यहाँ पे विंड को सिंबलाइज करके वो कहना चाहता है कि विंड की तरह ही जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, एडवर्सिटीज़ होती हैं, वो हमारे लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. The wind god winnows and crushes them all. Now here is a new word, winnows, which means blow grain free to chaff. Okay, so what does now this paragraph this stanza says that frail crumbling house, जितने भी कमज़ोर घर हैं उनको क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग, उनको तोड़ देता है. विंड क्या करती है, जो कमज़ोर घर हैं उनको तोड़ देते हैं, जो कमज़ोर दरवाजे उनको तोड़ दिया जाता है. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो ऊपर छत पड़ती है ना, उसको हम रैफ्टर्स बोलते हैं, रैफ्टर्स को तोड़ देते हैं. ऑल्सो क्रम्बलिंग वुड्स, लकड़ियाँ टूट जाती हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज़ मीन्स जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों का मतलब यहाँ पर मेंटली एंड फिजिकली लोगों से बात हो रही है, जो उनका मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस है, इफ़ दे आर वीक दे आर डिस्ट्रॉयड. Crumbling lives and crumbling herds. Also the crumbling lives and crumbling herds. जो लोग मतलब फिर से वही चीज़ है कि मेंटली और फिजिकली जो लोग कमज़ोर हैं वो निराश हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. ठीक है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. जो विंड गॉड है मतलब वायुदेव जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सबको क्रशेस देम ऑल. क्रशेस देम ऑल मतलब सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. He won't do what you tell him. अब फिर से देखिए, अब ये सजेशन दे रहे हैं. The poet is advising us that he won't do what you tell him. अभी तक तो बात हो रही थी विंड से कि ऐसा मत करो, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि विंड जो है हमारी बात नहीं सुनेगा. Therefore the poet tries to say that he won't do what you tell him. वो कभी भी वो नहीं करेंगे जो हम उनको कह रहे हैं. So come, let's build strong homes. तो ऐसा करते हैं हम कि let's build strong homes. हमें एक मजबूत घर बनाना चाहिए.
लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हमें दरवाजों को मजबूती से क्या करना चाहिए, ज्वाइन कर देना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने बॉडी को स्थिर, कठोरता से हमें क्या करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, स्टेबल करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हार्ट को क्या करना चाहिए, स्टीड फास्ट, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो जो विंड है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारे लिए फ्रेंड की तरह हो जाएगी। then that wind will not destroy us, that will not be destructive in nature, its destructive power will be with us, ठीक है। उसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो हमारे हेल्प के लिए काम आएगा, ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी praise him every day. Now the poet says that, gives us the message that the wind blows out weak fires, जो कमज़ोर लपटें होती हैं हवा की, जो कमज़ोर आग होती है, जैसे फायर अगर जल रहा है तो उस पर अगर आप फूंक मारो तो वो क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई तेज़ी से आग जल रही है तो आप अगर उसको फूकेंगे तो वो फैलती है। जैसे जंगल की आग जब होती है तो छोटी सी आग भी अगर हवा चलती है तो वो पूरे जंगल में फैल जाती है। लेकिन ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आपको बता रहा था कि जो विंड है वो वीक फायर्स को बुझा देती है, लेकिन वही विंड जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं उनको फ्लरिश करता है, मतलब उनको बढ़ाता है, उनको हम कह सकते हैं कि डेवलप करता है, ठीक है। सो द पोएट सेज दैट हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो विंड से जो फ्रेंडशिप होती है वो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें उनकी बड़ाई करना चाहिए, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, ओके। सो द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और वी कैन से द एग्जैक्ट थीम ऑफ दैट लास्ट टू स्टैंजास आर दैट द poet wants to tell us and also advises us that we should be strong enough mentally and physically to cope up with our adversities of life. Okay, if we are strong in our nature, if we are mentally and physically strong, then we can come through with any circumstances of our life. कोई भी circumstances हो, कोई भी situation हो, हम उसको easily handle कर सकते हैं if we are mentally and physically strong. And if we are not mentally and physically strong, the circumstances will totally ruin us, ठीक है, they will destroy us. So this was the explanation of your poem. Hope this explanation helps you, and after that the next day I will also explain the question answers and also give you the detailed answers of the exercises. So till then, keep listening this video and also try to understand what I have taught you, okay. So thank you class, have a nice day.